ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಿಂದಿಯ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ರೀಕ್ಯಾಪ್ ಥರ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಲ ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಥರ ನಾವು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಾನು ಮೊದಲಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಕೋಶಿಶ್ ಕರ್ನಿ ವಾಲೋಂ ಕಿ ಕಭಿ ಹಾರ್ ನಹೀ ಹೋತಿ, ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಬೈಹಾರ್ಟಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಬರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ಏನು असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, ಸಂಘರ್ಷ का मैदान छोड़कर मत भागो तुम. ಇದನ್ನು ನೀವು ಬರೀರಿ. ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಸೋಹನ್ ಲಾಲ್ ದ್ವಿವೇದಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ, ಕವಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಬರೀರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪತ್ರ, 5 ಅಂಕಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರಾಗಬಾರ್ದಾದ್ರಿಂದ ಐ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರಿತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ಬರೀತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಊರ ಹೆಸರನ್ನು ಇಲ್ಲ ಬರೀತೀರಾ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲಾ ನಾಳೆ ಪ್ರಧಾನಾಧ್ಯಾಪಕ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇದನ್ನು ಬರೀರಿ, ಕಕ್ಷಾಧ್ಯಾಪಕ ಅಂದರೆ ಕಕ್ಷಾಧ್ಯಾಪಕ ಅಂತ ಬರೀರಿ, ಮತ್ತು ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಊರ ಹೆಸರನ್ನ ನೀವು ಬರಿತೀರಾ. ಆದರಣೀಯ ಮಹೋದಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ವಿಷಯವನ್ನು ಬರಿತೀರಾ. 3 दिन की छुट्टी के लिए ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪತ್ರ, ನಾಳೆ 2 दिन की ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಏನು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಚುಟ್ಟಿ ಪತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र 2 दिन ಆಗ್ಬೋದು, 3 दिन ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 4 दिन ಆಗ್ಬೋದು. उपयुक्त विषयानुसार आपसे सविनय निवेदन है कि मैं अपने भाई की शादी में भाग लेने के लिए बेंगलुरु जा रहा हूँ, इसलिए मैं 3 दिन तक स्कूल में उपस्थित नहीं रह पाऊँगा अथवा नहीं रह पाऊँगी ಅಂತ गलत बरीरी. इसलिए मुझे 6/4/2024 से 8/4/2024 तक 3 दिन की छुट्टी प्रदान करने की कृपा करें ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಆಪ್ಕ ಆಜ್ಞಾಕಾರಿ ಛಾತ್ರ ಐ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರಿತೀವಿ. ಇಷ್ಟನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಈ 5 ಅಂಕ ಏನು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಪಡಿತೀರ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 9 ಅಂಕ ನಿಮ್ಮದೇ, 4 ಅಂಕ ಪದ್ಯದ್ದು ಮತ್ತು 5 ಅಂಕ ಪತ್ರದ್ದು, ಚುಟ್ಟಿ ಪತ್ರದ್ದು. ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಾದರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸು, ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅಂದರೆ ಭಾರತ್ ಮಾಕೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ का वर्णन कीजिए ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅಥವಾ ಮಾತೃಭೂಮಿ का ಸ್ವರೂಪ ಕೈಸೆ ಸುಶೋಭಿತ, ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದಂತೂ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. 2 ಅಥವಾ 3 ಅಂಕಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರಲಿದೆ. ಏನು ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೇನು, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತೃಭೂಮಿ का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत मनमोहक है, मातृभूमि के खेत हरे भरे और सुहाने हैं, वन उपवन फल फूलों से भरे हुए हैं, भारत माँ के अंदर इस धरती के अंदर ಖನಿಜೋं का व्यापक धन भरा हुआ है ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, मातृभूमि का स्वरूप अत्यंत सुंदर और सुशोभित है, मातृभूमि के एक हाथ में न्याय पताका जो न्याय का प्रतीक है, दूसरे हाथ में ज्ञानदीप है जो ज्ञान का प्रतीक है, माँ अपने न्याय तथा ज्ञान द्वारा बच्चों का मार्गदर्शन कर रही है ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದಿಂದ ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 2 ಅಂಕ ಅಥವಾ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 3 ಅಂಕ ನಮಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಬರ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬ್ ಪಾಠದ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಂದರೆ ಇವು. ಆಜ್ಕಲ್ ಶಿಕ್ಷಿತ ಸಮಾಜ ಮೇ ಕಿಸ್ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ವಿಚಾರ ಕಿಯಾ ಜಾತಾ है ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನಾವೇನು ಬರೀತೀವಿ, आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों पर विचार करने का प्रवृत्ति चल पड़ी है, अर्थात स्वास्थ्य को लेकर विचार किया जाने लगा है. दुकानदार ने लेखक से क्या कहा ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನಂತ ಉತ್ತರ ಬರೀಬೇಕು. दुकानदार ने लेखक से कहा, ಇದು लेखक ಇದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು, लेखक से कहा बाबूजी बड़े मज़ेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के, आप ले जाएं, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ. सेब की हालत के बारे में लिखिए ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, एक सेब सड़ा हुआ था, दूसरा सेब आधा सड़ा हुआ था, तीसरा सेब एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया था, चौथा सेब में एक काला सुराख था ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಬರೀತೀವಿ. अभिनव मनुष्य पद्यದಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ, दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, जो मानव दूसरे मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपस की दूरी को मिटाए वही मानव कहलाने का अधिकारी होगा ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರಿತೀವಿ. ಪ್ರಕೃತಿ ಪರ್ ಸರ್ವತ್ರ ಹೈ ವಿಜಯ ಪುರುಷ ಆಸೀನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಯದ ಆಶಯವನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ನಾವೇನಂತ ಬರಿತೀವಿ, आज मनुष्य प्रकृति की हर वस्तुओं पर अपना विजय पा लिया है, जैसे पानी विद्युत भाप इनके करों में बंधे हैं, पवन तथा ताप आज के मानव के हुक्म पर चढ़ता उतरता है ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಬರೆದ್ವಿ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ನಾವು 2 ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಓದಬೇಕು. ಒಂದು 3 ಅಥವಾ 4 ಅಂಕದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ 4 ಅಂಕ ಎಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು,
ಅದರ निबंधಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ निबंधಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, डायरेक्टाಗಿ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ. इंटरनेट एक तरह से विश्वव्यापी कंप्यूटरों का अंतर्जाल है. इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटरों की कई अंतर्जालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल है ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಬರೆದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ इंटरनेट का महत्व ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. इंटरनेट द्वारा पल भर में बिना ज़्यादा खर्च किए कोई भी विचार हो, स्थिर चित्र हो, वीडियो चित्र हो, दुनिया के किसी भी कोने में भेजा जा सकता है. इंटरनेट के बिना संचार व सूचना दोनों ही क्षेत्र कमज़ोर हो जाते हैं. इंटरनेट द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं, कोई भी बिल भर सकते हैं. इंटरनेट बैंकिंग द्वारा आप दुनिया की किसी भी जगह चाहे जितनी भी रकम हो भेजी जा सकती है. वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा एक जगह बैठकर दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ 8-10 दूरदर्शनों के पर्दे पर विचार विनिमय कर सकते हैं. सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है जिसने दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर ला खड़ा कर दिया है. ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ನಮಗೆ ಸೋಷಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ, ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ನ ಕುರಿತಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ, ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕುರಿತಂಥ ಒಂದು ಉತ್ತರ, ಮತ್ತು ಸಂಚಾರ ಸೂಚನಾ ಅಂದರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ, ಇವು ಮೂರನ್ನು ಬರೆದು ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕ ಮಹತ್ವ ನಿಬಂಧಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಅದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರೆಯೋಣ ಅಂತೆ. इंटरनेट की वजह से पायरेसी, बैंकिंग फ्रॉड, हैकिंग आदि बढ़ रही है. मुक्त वेबसाइट, चैटिंग आदि से युवा पीढ़ी ही नहीं बच्चे भी इंटरनेट के कबंध बाहों में फंसे हुए हैं. ಇದನ್ನೇ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನು ಉತ್ತರವಾಗಿ ಬರೀಬಹುದು. ಮತ್ತು ಕೊನೆ ನಿಷ್ಕರ್ಷೆ ಅಥವಾ ಉಪಸಂಹಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, इंटरनेट एक और वरदान है तो दूसरी ओर अभिशाप भी है. इसका उपयोग मानव विवेकपूर्ण ढंग से करेगा तो वरदान सिद्ध होगा, ಮಾನವ ಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಹೋಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನಿಷ್ಕರ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ವಿ. ಎರಡನೆಯ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂಥ ನಿಬಂಧ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜನಸಂಖ್ಯಾಕಿ ಸಮಸ್ಯೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದಂತೂ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣಂತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಷಯ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है परंतु जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान में है ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ವಿ. ಇದು ಪಹಲೆ ಸ್ಥಾನ में है ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ, ಚೀನಾವನ್ನು ಹಿಂದಿಟ್ಟು ಮೊದಲನೇ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण सारी योजनाएं विफल होती जा रही है, समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं. ಜನಸಂಖ್ಯಾ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜನ್ಮ ದರ, ಇದೇನಿದು जन्म दर की वृद्धि और मृत्यु दर में कमी, बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जाती है, आवास, ಭೋಜನ, ಕಪड़ा ಸಹಿ ಮಾತ್ರಾ ಮೇ ನಹಿ ಮಿಲ್ತಿ ಹೈ. ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕಾರಣಗಳು ಈ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದರ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. स्वास्थ्य और शिक्षा में बाधा पड़ती है, पर्यावरण प्रदूषण अधिक होता है, महंगाई बढ़ती है. ಅಂದರೆ ವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು, ಕಾರಣಗಳಿಗಿಂತ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪರಿಹಾರ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉಪಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೋದು, हम सब का यह कर्तव्य है कि इस समस्या का निवारण में पूरा योगदान दें. व्यक्तिगत रूप में परिवार को छोटे रखने का प्रयास करना चाहिए. सरकार और सामाजिक संस्थाओं, सभाओं, गोष्ठियों, संचार माध्यमों द्वारा छोटे परिवार से होने वाले लाभों का प्रचार प्रसार करना चाहिए. ಸಣ್ಣ ಪರಿವಾರದಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಭಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಉಪಸಂಹಾರ ಅಂದರೆ ಕೊನೆಗೆ ನಿಷ್ಕರ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನಂತ ಬರಿತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಜನಸಂಖ್ಯಾ ವೃದ್ಧಿ के ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು ಬೇಡ, देश के विकास में बड़ी बाधा है, छोटे परिवार में ही देश और जनता का हित निहित है ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಿಷ್ಕರ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೆದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಗಿಲ್ಲು ಪಾಠದಿಂದ गिल्लू के प्रति महादेव वर्मा जी की ममता का वर्णन कीजिए. काकद्वय की चोंचों के घाव से निश्चेष सा गमले में कैसे चिपका पड़ा गिल्लू को लेखिका ने हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई. रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया. फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटकाकर गिल्लू के लिए घर बना दिया. गिल्लू को भूख लगने पर उसका प्रिय खाद्य काजू या बिस्कुट देती थी. जब गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया तब लेखिका ने खिड़की के ये कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस लेती हैं. गिल्लू को थाली के पास बैठकर थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाना सिखाया.
किसने? लेखिका ने। गिल्लू के अंतिम दिनों में उसके पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि इसलिए लेखिका ने हीटर जलाकर उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया। सोनजू की लता के नीचे गिल्लू की समाधि बनाई है। ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಲೇಖಕಿ ಯಾರಾದ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮ ಅವರ ಆ ಒಂದು ಗಿಲ್ಲುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಮತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ गिल्लू के कार्यकलाप के बारे में लिखी ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. लेखिका जब लिखने बैठती तब अपनी ओर लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए लेखिका के पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता. खिड़की की राह गिल्लू बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड के नेता बना हर डाल उछलता कूदता रहता. ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता. वर्मा जी को चौंकाने के लिए गिल्लू कभी फूलदान के फूलों में, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में छिप जाता था. ಇದು 3 ಅಥವಾ 4 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು ಬಸಂತಿ ಮಂದರ್ ಲಡ್ಕಾ ಹೈ ಕೈಸೆ ಅಂತನೋ ಅಥವಾ ರಾಜ್ ಕಿಶೋರ್ ಕೆ ಮಾನವೀಯ ಗುಣ ಅವನ್ನಾದರೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಪಾಠದಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 3 ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು. बसंती की मंदर और स्वाभिमानी लड़का था. वह परिश्रम करके पैसे कमाना चाहता था, इसलिए उसने पंडित राजकिशोर से दिया 2 पैसे लेने से इनकार किया. भीख समझकर लेने से इनकार करता है. जब वह नोट बनाने गया तब लौटते समय मोटर के नीचे आ गया. बुरी तरह से घायल होने पर भी वह अपने भाई प्रताप को पैसे लौटाने राजकिशोर के घर भेजता है. इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बसंत एक स्वाभिमानी और ईमानदार लड़का है. ಆಗಲೇ ಮಾತಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ರಾಜಕಿಶೋರ ಮಾನವೀಯ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ. पंडित राजकिशोर एक मानवतावादी हैं. वे मजदूरों के लिए काम करते थे या मजदूरों के नेता थे. बसंत की स्थिति को देखकर उससे छलनी खरीदते हैं. बसंत की ईमानदारी को पहचानते हैं. बसंत के लिए चिकित्सा की व्यवस्था करते हैं. दुनिया में पहला मकानिंದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. दोनों दोस्तों जंगल की ओर क्यों चल पड़े? किंद्रुलालिम और किंचलालिदाम ಈ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ. नामक 2 दोस्तों ने तय किया कि वे मकान बनाएंगे. मुश्किल यह था कि वे नहीं जानते थे कि मकान कैसे बनाया जाता है. इसलिए वे पशुओं ಇದನ್ನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಪಶುओं ಇಷ್ಟಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, पूछताछ करने के लिए जंगल की ओर चल पड़े. मछली ने दोस्तों को क्या सुझाव दिया? ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ 4 ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೂಡ ಏನು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ बेटर. पेड़ों से बहुत सी पत्तियां तोड़कर इन पंक्तियों को छत पर, ಇದು छाप पर ಅಲ್ಲ, छत पर उसी तरह जमा दो जैसी मेरी पीठ पर पट्टियां हैं. शनि का वायुमंडल कैसे बना है? शनि का वायुमंडल हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा अमोनिया गैसों से बना हुआ है ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. बाल शक्ति पाठದ प्रश्न ಇದು. गांव की सफाई के लिए बालक क्या काम करते हैं? रोज़ 1 घंटा गांव की सफाई में लगाएंगे. गांव के कई गड्ढे को मिट्टी से ढांपते हैं. गांव का कूड़ा डालने के लिए एक निश्चित जगह बनाते हैं. गांव के चारों तरफ पेड़ पौधे लगाने से गांव को साफ सफाई रखते हैं. कलेक्टर साहब ने बच्चों की बड़ाई में क्या कहा? ये प्रश्न ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. इस गांव को साफ सुथरा देखकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई. गांव को एक नया जीवन प्रदान किया गया है. इन बच्चों की जितनी बड़ाई की जाए उतनी ही थोड़ी है. इन सबसे मिलकर गांव को स्वच्छ वातावरण दिया है. इन सब ने मिलकर गांव को स्वच्छ वातावरण दिया है. बाल शक्ति के कारण आपका गांव एक आदर्श गांव बन गया है. 5,000 रुपये मिलने पर मोहन क्या सोचता है ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಆದರೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣಂತೆ. 5,000 रुपये मिलने से मोहन उसे प्रधानाध्यापक जी को देकर स्कूल के पुस्तकालय में गरीब बच्चों के लिए पुस्तकों का प्रबंध करना के बारे में सोचता है. धीरज सक्सेना रोबोट पाठದಿಂದ ಇದು धीरज सक्सेना को बुद्धिमान रोबोट की ज़रूरत क्यों थी? घरेलू कामकाज करने के लिए, नाती पोतों का होमवर्क कराने के लिए, वर्ड प्रोसेसर पर काम संभालने के लिए धीरज सक्सेना को बुद्धिमान रोबोट की ज़रूरत थी. ई गवर्नेंस क्या है? सरकार के सभी कामकाज का विवरण, अभिलेख, सरकारी आदेश आदि को यथावत लोगों को सूचित किया जाता है. इसे ई गवर्नेंस या ई प्रशासन कहा जाता है. इससे प्रशासन क्या बनता है? पारदर्शी बनता है. समय की पहचान कविता में क्या संदेश है?
समय बहुत अनमोल है। हमें काम करने का जो अवसर मिलता है उसे आलस और बहाने बनाना छोड़कर उसी में मन लगाकर आत्मविश्वास के साथ संदेह को भगाकर काम करना चाहिए। अगर उस समय को सदुपयोग नहीं करेंगे तो हमें बहुत पछताना पड़ता है। बिचेंद्र का बचपन कैसे बीता? बिचेंद्र को बचपन में रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था। सिलाई का काम सीख लिया और सिलाई करके पढ़ाई का खर्चा जुटाती थी। ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಬೋದು. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದರ ಆನ್ಸರ್, ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಗಮನಿಸಿ. बिचेंद्र ने पहाड़ पर चढ़ने की तैयारी किस प्रकार की? बिचेंद्र ने सुबह 4 बजे उठकर बर्फ़ पिघलाई और चाय बनाई। कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के पश्चात लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। इस तरह बिचेंद्र पाल ने पहाड़ चढ़ने की तैयारी शुरू की। दक्षिण शिखर पर चढ़ते समय बिचेंद्र का अनुभव क्या था? दक्षिण शिखर पर हवा की गति बढ़ गई थी। उस पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिससे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ढलान एकदम सीधी नीचे चली गई थी। महात्मा गांधी जी सत्य की शक्ति के बारे में क्या कथन है ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, सत्य एक विशाल वृक्ष है, उसका जितना आदर किया जाता है उतने ही फल उसमें लगते हैं, उनका अंत नहीं होता। किन्हीं 2 नागरिक कर्तव्यों को लिखिए। राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय त्यौहार आदि का आदर करना चाहिए। देश के प्रति गौरव का भाव रखना एवं देश की एकता अखंडता को कायम रखना नागरिक के कर्तव्य होते हैं। झूठ का सहारा लेते हैं तो क्या क्या सहना पड़ता है? हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं, मुंह काला करना पड़ता है, अपमानित होना पड़ता है। ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ का बचपन बहुत ही निश्चिंतता और सादगी में बीतने के कारण लिखिए ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, अब्दुल कलाम जी के पिता आडंबरहीन व्यक्ति थे और सभी अनावश्यक एवं ऐशो आराम वाली चीज़ों से दूर रहते थे, पर घर में सभी आवश्यक चीज़ें समुचित मात्रा में सुलभता से उपलब्ध थी। इसलिए अब्दुल कलाम जी का बचपन बहुत ही निश्चिंतता और सादगी में बीता। ಆಶಿ ಅಮ್ಮ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ को खाने में क्या क्या देती थी ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. आशी अम्मा जी अब्दुल कलाम के सामने रसोई घर में केले का पत्ता बिछाती और उस पर चावल एवं सुगंधित स्वादिष्ट सांभर डालती। साथ में घर में का बना अचार और नारियल की ताज़ी चटनी भी होती। जैनुल आबदीन नमाज के बारे में क्या कहते हैं? जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो, जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. चप्पलों की चोरी होने पर ईमानदार डेलीगेट ने क्या सुझाव दिया? देखिए, चप्पलें एक जगह नहीं उतारनी चाहिए, ಇದು ना उतारनी चाहिए। एक चप्पल यहाँ उतारिए तो दूसरी चप्पल 10 फीट दूर, तब चप्पलें चोरी नहीं होती। इस तरह से ईमानदार डेलीगेट ने कहा। लेखक ने कमरा छोड़कर जाने का निर्णय क्यों किया अथवा क्यों लिया? लेखक परसाई जी ने जब से इस सम्मेलन में भाग लिए थे तब से कोई ना कोई चीज़ें चोरी हो रही थी। लेखक का चप्पल, चादर, कंबल, ताला तक चोरी में चला गया था। वे सोचते थे कि अगर कुछ देर यहाँ रुका तो मैं ही चोरा ले जाऊँगा। ऐसा सोचकर लेखक ने कमरा छोड़कर जाने का निर्णय लिया। लेखक की बेईमानी कहाँ दिखाई देती है ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಎಂತ ಬರೀಬೇಕು? लेखक ने पहले दर्जे का किराया लेकर दूसरे दर्जे में सफ़र करना चाहते हैं। 10 बड़ी फूल मालाएँ पहनाने पर आसपास कोई माली होता तो फूल मालाएँ भी बेच लेने के बारे में सोचते हैं और खुद अपने आप को ईमानदार ना समझते हुए भी ईमानदार सम्मेलन में वे आए थे। ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. कृष्ण बलराम के साथ खेलने क्यों नहीं जाना चाहता? बलराम कृष्ण को हमेशा चिढ़ाता है। वह कहता है कि तुम्हें यशोदा माँ ने जन्म नहीं दिया है बल्कि मोल लिया है। इसी क्रोध के कारण कृष्ण बलराम के साथ खेलने नहीं जाना चाहता। यशोदा कृष्ण के क्रोध को कैसे शांत करती हैं? यशोदा कृष्ण के क्रोध को शांत करने के लिए इस तरह कहती है, हे कृष्ण सुनो, बलराम जन्म से ही चुगलखोर है। मैं गोधन की कसम खाकर कहती हूँ, मैं ही तेरी माता हूँ और तुम मेरे पुत्र हो। मुखिया मुख चाहिए
ಖಾನ್ ಪಾನ್ ಕೋ ಏಕ್ ಪಾಲೆ ಪೋಸೆ ಸಕಲ ಅಂಗ ತುಳಸಿ ಸಹಿತ ವಿವೇಕ್. ಈ ಒಂದು ದೋಹವನ್ನು ನಮಗೆ ಭಾವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದರೆ ಹೀಗೆ ಬರೆದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕವಿತಾ तुलसी के दोहे, कवि गोस्वामी तुलसीदास जी। भावार्थ, प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि मुखिया का स्वभाव मुख के समान होना चाहिए। मुख जिस तरह खाना खाकर पानी पीकर अपने अधीन सकल अंगों का पालन पोषण करता है, उसी तरह मुखिया विवेकवान होकर काम अपनी तरह से करे, लेकिन उसका फल सभी में बांटे। नेक्स्ट पोयम, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की न करतर संत हंस गुण नहीं पाए परिहरी वारी विकार। मत कविತೆಯ ಹೆಸರು बरदाद मेले प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि सृष्टिकर्ता ने इस संसार को जड़ चेतन गुण दोष अच्छाई बुराई मिलाकर बनाया है, लेकिन हंस रूपी साधु लोग विकारों को छोड़कर अच्छे गुणों को अपनाते हैं। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दयाನ ಛಾಂಡಿಯೇ जब लग घट में प्राण। ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಸರಳವಾದಂತಹ ಒಂದು ದೋಹ ಇದು. ನಾಳೆಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ दोहेಗಳು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, इधर कड़े ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ गमन इरली। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि दया धर्म का मूल है और अभिमान पाप का, इसलिए जब तक शरीर में प्राण है तब तक मानव को अपना अभिमान छोड़कर दयालु बने रहना चाहिए। तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक साहस सुकृति सुशक्ति व्रत राम भरोसा एक। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं मनुष्य पर जब विपत्ति आती है तो तब विद्या विनय विवेक साहस सुकृति सुशक्ति व्रत और राम पर भरोसा उसका साथ निभाते हैं। ತುಂಬ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ನಾವು ಬರಿಬೇಕು। ರಾಮ್ ನಾಮ್ ಮನಿ ದೀಪ್ ಧರು ಜೀಹ್ ದೇಹರಿ ದ್ವಾರ್ तुलसी भीतर बाहिरो चाहसी उजियार। ಇದು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ दोहा। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस तरह देहरी पर दिया रखने से घर के भीतर और आंगन में प्रकाश फैलता है, उसी तरह राम नाम जपने से मानव की आंतरिक और बाह्य शुद्धि होती है। ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪದದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ सौंदर्य ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ कर्नाटक शिल्पकला ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ। प्रकृति माता ने कर्नाटक राज्य को अपने हाथों से संवार कर सुंदर समृद्ध बनाया है। कर्नाटक की प्राकृतिक सूक्ष्म नयन मनोहर है। पश्चिम में विशाल अरबी समुद्र लहराता है। इसी प्रांत में दक्षिण से उत्तर की छोर तक फैले लंबी पर्वतमालाएं पश्चिमी घाट कहलाते हैं। इन्हीं घाटों का कुछ भाग सह्याद्री कहलाता है। दक्षिण में नीलगिरी पर्वतमालियाँ शोभायमान हैं। कर्नाटक की शिल्पकला का परिचय दीजिए ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ कर्नाटक राज्य, ಇದು राज्य शिल्पकला, राज्य की शिल्पकला अनोखी है। बदामी, ऐहोळे, पट्टदकल्लु में जो मंदिर हैं उनकी शिल्पकला वास्तुकला अद्भुत है। बेलूरू, हड़ेबीडू, सोमनाथपुर के मंदिरों के पत्थर की मूर्तियाँ वे सजीव लगती हैं। श्रवणबेळगोळ में 57 फुट ऊंची गोमटेश्वर की एक शिला प्रतिमा है। विजयपुरा में गोल गुंबज की विस्परिंग गैलरी वास्तुकला का अद्वितीय दृष्टांत है। कन्नड़ भाषा और संस्कृति के लिए कर्नाटक के साहित्यकारों की क्या देन है ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ। वचनकार बसवಣ್ಣ, अक्का महादेवी, अल्लमा प्रभु, सर्वज्ञ जैसे अनेक संतों ने अपने अनमोल वचनों द्वारा प्रेम, दया और धर्म की सीख दी है। पुरंदरदास, कनकदास आदि भक्त कवियों ने भक्ति, नीति, सदाचार के गीत गाए हैं। पंपा, रन्ना, पुन्ना, कुमारव्यास, हरिहर, राघवांक आदि ने महान काव्यों की रचना कर कन्नड़ साहित्य को समृद्ध बनाया है। ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಕೂಡ ನಾವು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು। शनि एक अत्यंत ठंडा ग्रह है, क्यों ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ शनि ग्रह सूर्य से पृथ्वी की अपेक्षा करीब 10 गुना अधिक दूर है, इसलिए बहुत कम सूर्य ताप उस ग्रह पर पहुंचता है। इसलिए शनि वायुमंडल का तापमान शून्य के नीचे 150 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। इस कारण शनि एक अत्यंत ठंडा ग्रह है। ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದರೆ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋ ಒಂದು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ನಾವು ತಲುಪ್ತೀವಿ। ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತವೆ। ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಥರ ನಾವೇನೇನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇವನ್ನೊಂದು ಸಲ ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಥರ ಒಂದು ಸಲ ಗಮನಿಸಿ। ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ವ್ಯಾಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹದ್ದೇ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ। ಧನ್ಯವಾದಗಳು।